chemical reaction, and third type is displacement reaction. Next type कौन सा है अपना displacement reaction. So first the definition of displacement reaction. What is meant by the displacement reaction? In this those types of reaction in which the one element takes places to the another element. Means एक element दूसरी element की क्या लेता है, जगह लेता है, and to produce the new compound, that is known as your displacement reaction. Displace अपनी एक one element take the place to the another element. For example, copper sulfate solution, copper sulfate CuSO4 solution, right? The color of the copper sulfate solution is blue. Then react with the zinc. Means क्या करना पड़ेगा आपको? Take one test tube. In this test tube you add the CuSO4 solution. इसमें आप CuSO4 सॉल्यूशन ऐड करना है, एंड ऐड सम ग्रैन्यूल्स ऑफ द जिंक के कुछ पार्टिकल्स उसमें क्या करो, ऐड करो. ड्यूरिंग दैट आफ्टर सम टाइम आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द कॉपर. कॉपर के कंपैरिजन में जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है. तो जिंक इजीली डिस्प्लेसेस टू द कॉपर. इजीली उसके साथ वो क्या करेगा, उसकी एक्सचेंज जो है टेक्स प्लेस अनदर एलिमेंट, मीन जिंक इज डिस्प्लेसेस टू द कॉपर एंड इट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द ZnSO4 प्लस कॉपर इज सेपरेट आउट. मीन्स ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, इस रिएक्शन में ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है, ब्लू कलर सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू द कलरलेस सॉल्यूशन. कलरलेस सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेक्स प्लेस हियर. द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद द जिंक एंड द जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू कॉपर. सो जिंक इज इजीली डिस्प्लेसेस टू द कॉपर एंड इट कन्वर्टेड इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड हैविंग कलर इज colorless. Then another example. Take the another example. For example, the CuSO4 react with the magnesium and it's converted into the CuSO4 MgSO4. That means magnesium sulfate and then copper is separate out. Means इससे ये पता चलेगा कि magnesium is more reactive as compared to copper. Magnesium क्या है आपका, more reactive है as compared to copper, which is easily displaces to the magnesium, easily displaces to the copper. Copper को easily वो क्या करता है, displace करता है and converted into the new substance that is known as your magnesium sulfate. Another example, the copper sulfate solution again react with iron. Copper sulfate solution again react with the iron and it's converted into the FeSO4. फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज फॉर्म, या फिर आयरन सल्फेट भी बोला जाता है, फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट, वॉट एवर यू कैन से. ठीक है, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो. फेरस सल्फेट कलर इज फॉर्म एंड दैट ब्लू कलर सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू द ग्रीनिश कलर. कौन से कलर में वो कन्वर्ट करता है, ग्रीनिश कलर में. एंड ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल टू टेक द AgNO3 solution. In this AgNO3 solution react with the copper, that means during that process what will happen, copper easily displaces to the Ag because copper is more reactive as compared to silver. Silver nitrate solution के साथ react होगा and CuNO3/2 this reaction is formed and then another product is Ag. Means in this reaction AgNO3 solution, the AgNO3 solution react with the copper to form the copper nitrate solution and then copper nitrate solution plus silver is formed and during that process the copper is more reactive as compared to the Ag and which is easily displaces to the silver. समझ में आया displacement reaction? That reaction is known as displacement reaction. The definition of this reaction, those reaction in which the one element takes the place to the another element in a compound is known as the displacement reaction. So note down all these are the topics. Then we will start the second example. So the second type is nothing but the double displacement reaction. Let's see the double displacement reaction. What is meant by the double displacement reaction? वो देखेंगे हम. Next is double displacement reaction. What is meant by the double displacement reaction? Double displacement reaction. Here
Double displacement reaction means two salt is given. In this two, by using of this two salt in this reaction in which the two compounds react together and exchange of ion takes place here. है ना, two compounds दिए रहेंगे and changes exchange of ion to form the two new compound is formed. Means in this compound two compounds in this compound, the two compounds react to two compounds react together and exchange of ion takes place. That reaction is known as your double displacement reaction. During that double displacement reaction, one compound, जो दो compound form होंगे उसमें से एक compound which is soluble in the compound liquid form में रहेगा, then another compound is insoluble form, that is known as the precipitate form में रहेगा. ठीक है, that reaction is known as double displacement reaction. जैसे कि for example take a silver nitrate AgNO3 solution in a beaker. एक beaker लो या फिर test tube. In this test tube you add the AgNO3 solution. Okay, in this AgNO3 solution added into the NaCl, react with NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद इन दिस बीकर आफ्टर दैट एडिंग द NaCl, जैसे ही NaCl ऐड करोगे तो लार्ज नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे and the precipitation is exchange of ion takes place. Means these two different compound that Ag is transferred here and then sodium is here and exchange of ion takes place and to forming the NaNO3 plus AgCl. That means NaNO3 and AgCl is formed. That means the silver chloride and sodium nitrate. Sodium nitrate which is soluble form and AgCl it is white PPT फॉर्म करता है. AgCl क्या फॉर्म करता है? वाइट कलर की PPT फॉर्म करता है एंड देन NaCl विच इज प्रेजेंट इन द सोल्यूबल फॉर्म. आप जब ये रिएक्शन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी. ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज बैरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट विद द सोडियम सल्फेट Na2SO4. इसके लिए इन दोनों की रिएक्शन करोगे. बोथ आर द योर एक्वियस सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट. अब ये जैसे ही दोनों सॉल्यूशन हो गए तो यहाँ पे बैरियम एंड द सोडियम एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस. एक्सचेंज ऑफ आयन होगा एंड टू प्रोड्यूस द बैरियम SO4 इसके साथ अटैच हो जाएगा बैरियम सल्फेट प्लस Na2 NaCl twice NaCl. That means barium sulfate having the producing the white PPT. white कलर की जो PPT वो कौन प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे? बैरियम सल्फेट. अंडरस्टूड दिस रिएक्शन? सेम रिएक्शन रहेगी बस एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन दिस ईयर. दैट रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला है? क्योंकि इसके पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो देखी थी उसमें सिंगल एक मेटल जो था विच इजीली डिस्प्लेसेस टू द अनदर मेटल. Right, here the two different compound is here, salt compound is given and then exchange of ion, the metal is displaces to the exchange their places. वो अपनी अपनी जगह क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं. आयन्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं and to producing the new substance. And there are the two types of substance. One is in the liquid form, soluble form, and the another is in the insoluble form, यानी जिसे बोला जाता है precipitate form. ओके, तो सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर कॉपी जो मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगी. उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है अपना फोर्थ टाइप के बाद नेक्स्ट लास्ट टाइप है अपना फिफ्थ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, व्हाट इज मीन बाय द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन? सो वी विल सी द फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन देन रिडक्शन रिएक्शन. ओके, सो फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. So fifth type is oxidation and reduction reaction. So what is meant by the oxidation? Oxidation is nothing but oxidation reaction is nothing but the in this reaction those are the substances या फिर addition of oxidation takes place to a substance. जिस substance में addition of oxygen होता है उसे oxidation बोला जाता है. That means the addition of oxygen to a substance. Addition of oxygen to a substance is called as oxidation. इसे हम क्या बोलेंगे? Oxidation. Otherwise addition of oxygen या फिर removal of hydrogen to a substance
उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अदरवाइज द थर्ड पॉइंट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेस आपको सिलेबस में नहीं है टू ए सब्सटेंस, लेकिन बस आपको समझने के लिए याद रखना है डेफिनेशन। ओके, और देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ डेफिनेशन इज फॉर्म ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मींस जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन। अदरवाइज हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेक्स प्लेस टू ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑल्सो ए ऑक्सीडेशन। अदरवाइज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए सब्सटेंस इट इज ऑल्सो नोन एज ए ऑक्सीडेशन, उसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल CuO combine copper oxide combine with hydrogen H2O as hydrogen gas to form a copper plus H2O। क्या मिल रहा है यहाँ पे, कॉपर प्लस H2O। ये इस रिएक्शन से हम समझेंगे उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय द रिडक्शन रिएक्शन, सम डेफिनेशन ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन, जैसे कि जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है टू ए सब्सटेंस, दैट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। अदरवाइज सेकेंड वन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, जिसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसे भी बोला जाता है क्या, रिडक्शन। अदरवाइज थर्ड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए सब्सटेंस। इलेक्ट्रॉन बेस आपको सिलेबस में नहीं है, अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज दिस टू डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, ये दो डेफिनेशन आपको याद अच्छे से रखना है। रिडक्शन मीन्स व्हाट, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है टू ए सब्सटेंस में, दैट इज ऑल्सो नोन एज द रिडक्शन। एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है, दैट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे होता है उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की अगर एडिशन हो रही है दैट इज ऑल्सो नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। बस नोट डाउन करने के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स का इंपॉर्टेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन बेस पे अभी आपको इस बार नहीं है, आप जब 11th में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बेस पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, लेट्स सी द प्रॉब्लम हियर। कॉपर ऑक्साइड react with water hydrogen to form the copper plus water molecule, right? तो अब इस रिएक्शन में देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड में देखना है आपको, किसमें, रिएक्टेंट, दिस साइड इज नोन एज योर रिएक्टेंट एंड दिस साइड इज नोन एज योर प्रोडक्ट साइड, राइट। चेंजेस सब जितने भी रहेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वो सिर्फ रिएक्टेंट साइड में होते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में आपको देखना है कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉपर में। इसमें क्या था, ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया मीन्स क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पे। और जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिएक्शन कौन सी रहती है आपकी, रिडक्शन रिएक्शन। मीन्स CuO ने कौन सी रिएक्शन दी है, रिडक्शन रिएक्शन। देन हाइड्रोजन, लुक एट द हाइड्रोजन में क्या हुआ है, वाटर ऐड हुआ है, H2O ऐड हुआ है, राइट। H2O अगर ऐड हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ है, मीन्स H2 का H2O हुआ है, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस हियर। जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है दैट रिएक्शन इज नोन एज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को कौन से बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतना यहाँ तक समझ में है, हाउ टू फाइंड आउट द नेक्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द नेक्स्ट सब्सटेंस इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज मीन बाय द रिड्यूसिंग एजेंट, दो सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, एंड दो सब्सटेंसेस विच गेट्स रिड्यूस, जो रिड्यूस होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेट्स सी द एग्जांपल के थ्रू पे देखते हैं कि किस वे से कहने होगा। कॉपर ऑक्साइड, दैट कॉपर ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द कॉपर ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, दैट मीन्स ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं हम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन रिएक्शन, उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन।
एंड देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस हियर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो वहां पे उसे क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। मीन्स इन दिस रिएक्शन सिर्फ इन दोनों की तरफ देखना है, इधर प्रोडक्ट की तरफ नहीं, प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होते हैं वही देखना है। इन दिस रिएक्टेंट साइड में जो कॉपर ऑक्साइड है कॉपर में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स दैट CuO इज नथिंग बट योर सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड, ऐसा सब्सटेंस है जो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, दैट मीन्स CuO, सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा है आपका, CuO। एंड देन नेक्स्ट हियर हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर, मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मींस हाइड्रोजन कौन सा सब्सटेंस है आपका, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, मींस सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज, कौन सा है, H2। देन वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा रहेगा, दो फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड, जो सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करने के लिए हेल्प कर रहा है, कौन सा है, रिड्यूस कौन सा हो रहा है, CuO, सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या है आपका, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, सॉरी सब्सटेंस रिड्यूस्ड है, जो रिडक्शन करने के लिए हेल्प कर रहा है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही सेम क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स जो रिडक्शन करता है, सब्सटेंस रिडक्शन करता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, CuO इज नथिंग बट योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड देन नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स व्हाट, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करता है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीडेशन किया है, ऑक्सीडाइज हुआ है, राइट, तो ये सब्सटेंस इज नथिंग बट क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, दैट सब्सटेंस इज नोन एज योर रिड्यूसिंग एजेंट। अंडरस्टूड दिस एग्जांपल, समझ में आया। वैसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं, राइट डाउन दिस एग्जांपल इन ए कॉपी। इन दिस एग्जाम्पल आपको एग्जाम में किस वे से पूछा जाएगा, यू हैव टू गिवन द वन रिएक्शन एंड इन दिस रिएक्शन आपको पूछा जाएगा फाइंड आउट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द गिवन रिएक्शन, इस वे से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो राइट ऑफ द नेक्स्ट रिएक्शन, उस नेक्स्ट रिएक्शन में आपको फिर से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपको फाइंड आउट करना है, ओके। सो अनदर एग्जाम्पल इज H2S combine with chlorine Cl2, H2S combine with chlorine Cl2 to form a sulfur plus HCl gas twice. Okay, let's see, observe this reaction. In this reaction H2S is converted into the sulfur, means हाइड्रोजन था, अब है क्या, नहीं सल्फर में कन्वर्ट हुआ है, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लुक एट दिस क्लोरीन, क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू द HCl, मीन्स इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टेक्स प्लेस हियर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जहां पे होता है वहां पे उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जहां पे होता है उसे बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन, मीन्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज योर रिडक्शन रिएक्शन। अंडरस्टूड, लेट्स सी, वी हैव टू फाइंड आउट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच आर द रिड्यूसिंग एजेंट, वही सेम हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, ऑक्सीडेशन किसने किया है, H2S ने, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन किसने किया है, H2S ने, मीन्स सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा है आपका, H2S। देन नेक्स्ट सब्सटेंस रिड्यूस, रिडक्शन किसने किया है, क्लोरीन। प्रोडक्ट साइड के नाम नहीं लिखने, सिर्फ रिएक्टेंट साइड का देखना है, ओके। द क्लोरीन ने क्या किया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया है, मीन्स रिडक्शन हुआ है क्लोरीन में, राइट, तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा आपका, क्लोरीन। देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा रहेगा, जो सब्सटेंस आपका रिड्यूस्ड हो रहा है वही सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, मीन्स क्लोरीन Cl2 एज इट इज लिखना है। एंड द रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा रहेगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वही सेम आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक, इस टॉपिक से आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज नथिंग बट द ऑक्सीडाइज रेडॉक्स रिएक्शन। इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, दैट इज नोन एज योर रिडक्शन रिएक्शन, और जिसमें क्या होता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अंडरस्टूड दिस टॉपिक. आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज योर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ए एवरीडे लाइफ. अब एवरी डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, उसका इफेक्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट आपका किस वे से होता है. इफेक्ट, लेट्स सी द रस्टिंग ऑफ आयरन. अब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है यानी करोजन होता है. ये जो टाइप देख रहे हैं हम, करोजन इज नथिंग बट द ईटन अप ऑफ ए मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एयर, है ना. इसके कांटेक्ट में आने के बाद जो है वो एक रस्टिंग फॉर्म होती है, एक ब्राउनिश कलर या फिर रेडिश कलर फॉर्म होता है, जिसे बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन. लेट्स सी द व्हाट इज मीन बाय द रस्टिंग ऑफ आयरन. अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो किसके वजह से होता है, एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स या फिर वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है एंड द मॉइस्चर कांटेक्ट विद द, किसके कांटेक्ट में, किसके कांटेक्ट में आते हैं, मेटल के कांटेक्ट में आते हैं वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन, एंड डायरेक्टली उसके साथ मेटल को क्या करते जाते हैं, ईटन अप करते जाते. दैट रिएक्शन इज नोन एज योर रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इन द मोस्ट कॉमनली आप देखते हो. सो ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑकर्स व्हेन आयरन गेट रेडिश, फॉर्म द रेडिश ब्राउन कलर. ओके, तो व्हाट इज द रिएक्शन कौन सी होती है उसमें, आयरन दैट इज नोन एज योर Fe रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज योर रस्टिंग एंड देयर फॉर्मूला इज ट्वाइस Fe2O. Then another topic is rancidity. How to rancidity form? What is mean by the rancidity? The oxidation of oils and fats in a food resulting in the bad smell of taste is called as the rancidity. जिसमें से एक स्मेल फॉर्म होती है इन दिस प्रोसेस, तो उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन होता है, उसे बोला जाता है rancidity. और उसे प्रिवेंट करना है. rancidity इज नथिंग बट फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग जो सब्सटेंसेस रहेंगे उसको, उसके साथ ही rancidity होती है, और उसे प्रिवेंट करना है. तो प्रिवेंशन के लिए कुछ प्रोसेस की जाती है बाय पैकिंग द फूड्स, ठीक है. और ये जो फैट्स एंड ऑयल है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होते हैं एंड एक अनप्लीजेंट स्मेल फॉर्म होती है. दैट अनप्लीजेंट स्मेल एंड ड्यूरिंग दैट द केमिकल रिएक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस हियर, दैट रिएक्शन इज नोन एज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इस अनप्लीजेंट स्मेल को ही बोला जाता है रैंसिडिटी, और वो जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है. हाउ टू प्रिवेंट द रैंसिडिटी. रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले किया जाता है एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट. एक जो एंटीऑक्सीडेंट जो है सब्सटेंस ऐड किया जाता है, इट्स नथिंग बट योर रिड्यूसिंग एजेंट. उसे को ही आप क्या बोल सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हो. एंड द रिड्यूसिंग एजेंट इज BHA एंड the another reducing agent is BHT. BHA is nothing but the butylated hydroxyanisole और BHT is nothing but the butylated hydroxytoluene. ये कंपाउंड जो है वो ऐड करते हैं. अदरवाइज रैंसिडिटी को अगर प्रिवेंट करना है तो उसे रेफ्रिजरेशन यानी रेफ्रिजरेटर में भी रखा जाता है. एट हाई टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेटर पे रखने के बाद भी उसे आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो. अदरवाइज द अनदर टॉपिक इज, अगर प्रिवेंशन करना है प्रिवेंशन करना है रैंसिडिटी को, तो अनदर टॉपिक किया जाता है रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग द फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड. जो फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड जो है उसको इन ए नाइट्रोजन गैस में आप उसे क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन गैस से उसे फिल कर सकते हो.